हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 69 और हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक अंडर द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड is combustion. Combustion is the first topic, that is 4.3.1. We have got a total of 4 topics under this heading. Combustion is the first one. Let us see what is there under this heading. Okay, let us start with a very simple question. आपके पास एक क्वेश्चन, C plus O2 gives you question mark. You have to complete this reaction and then balance it also if possible. Okay, so this takes you to the chapter 1 of our textbook, chemical reactions and equations. What is C plus O2? I hope you have guessed the answer by now. Let me see whether your answer matches our answer or not. So the answer is C plus O2 gives you CO2, that is carbon dioxide, plus heat and light is also given out. Right? C plus O2 CO2 plus heat and light is also given out. So whenever carbon undergoes combustion, you will get carbon dioxide formed and heat and light is also given out. Let me see whether this reaction is balanced or not. One carbon this side, one carbon this side, two oxygen this side, two oxygen this side. So I think this reaction is balanced. If you remember, this is a combination reaction from chapter 1. Okay, let me give you one more question. Complete this reaction. What is this? By now you must be aware. अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। ये है मीथेन। यस, CH4 is मीथेन। सो मीथेन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, when you heat methane with oxygen, what do you get? What do you get? Make a guess. क्या मिलेगा? Whenever a hydrocarbon, a carbon compound reacts with oxygen, what do you get? Made a guess? Let me see whether your guess matches our answer or not. So the answer to this particular question is you get carbon dioxide, you get water, heat and light is also given out. I suppose your answer is correct. So whenever hydrocarbon, any hydrocarbon for that sake, combines with oxygen, you will always get two products, that is carbon dioxide and water. CO2 or water milega. Now see, there is one carbon here, one carbon here, balanced. 4 hydrogens are there, so let me put 2 in front of it. So 2, 2, 4 hydrogens are over, but now the oxygen over here is 2 and 2, 4. So let me put a 2 in front of this. So now the carbon is balanced, hydrogen is balanced and oxygen is also balanced. I hope you know how to balance these equations. So this was the second reaction. What was the question? Question was, what happens when methane burns in air? So methane burns in air, methane undergoes combustion and you get CO2 and H2O along with heat and light. Right? Let me give you one more question. Okay, so the next question is, please complete this particular reaction, and the reaction is, you have to tell me what is this. This is not methane now. What is this? There are 2 carbons, so ETHAN, don't put E. And which is this functional group? जल्दी बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल।
सो पीछे लग जाता है OL. So this is ethanol, right? Ethanol on combustion with oxygen, what do you get? I told you, if there is a hydrocarbon, it is going to produce carbon dioxide and water. तो इसके products भी पिछली बार के जैसे ही होंगे. So you will get carbon dioxide, you will get water, plus you will get heat and light. Okay, now you have to balance this equation. Can I leave this balancing to you? आप इसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं? प्लीज इसकी बैलेंसिंग कर दीजिए. ओके, पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड बैलेंस दिस इक्वेशन. हम आगे चलते हैं. जैसे ही आपका बैलेंस हो जाए आगे चलेंगे. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ इज दैट कार्बन अकेला हो या फिर कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म में हो कार्बन, ओके, या फिर कोई हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में हो, it will burn in oxygen, it will always give you CO2 along with the release of heat and light. तो जब भी कार्बन आपका बर्न होने वाला है, it will produce कार्बन डाइऑक्साइड. और अगर वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन भी है, so then you will get water also, right? So the main thing is that carbon in all its allotropic form burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light. आपने देखा था इसमें भी heat and light था और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था. इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, हीट एंड लाइट मिला था. इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, हीट एंड लाइट मिला था. राइट? सो दिस पॉइंट इज क्लियर. पॉइंट नंबर A is clear. Please take it down. We will move to now point number 2. Okay, so this is point number 2. What can you see here? क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पर? देखिए, I can see, मैं यहां क्या देख रहा हूं, ये देखिए मैंने फायर है, दिस इज नथिंग बट फायर. एक मेरे पास बीकर है, बीकर के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, आई हैव टेकन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैं बर्न कर रहा हूं. सो व्हेनेवर आई एम बर्निंग अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मुझे एक ब्लू कलर की क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करेगा. सो whenever listen carefully, whenever saturated hydrocarbons are burned in oxygen, जब भी saturated hydrocarbon burn होते हैं, you will get a clean blue flame. ये देखिए ऐसी फ्लेम आपने कहीं देखी है? Have you seen this kind of flame anywhere? Yes, you must have guessed it right. Yes, घर में, कहां पर? किचन में. Yes, जब मम्मी गैस पर काम करती है, right? When she puts on this fire, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी ये ब्लू कलर की फ्लेम आती है. तो अगर ब्लू कलर की फ्लेम आ रही है, मतलब जो आपका हाइड्रोकार्बन जल रहा है, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम. समझ में आया? तो लिख भी लेते हैं. चलिए, पॉइंट नंबर B हम लिख लेंगे. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ clean flame, and clean flame is generally blue in color. So this is that clean flame. So saturated hydrocarbons will generally give a clean flame. समझ में आया? Right? चले आगे, next देखते हैं. Okay, there is one more picture. Look at the picture carefully. देखिए, मैंने भी ड्रॉ किया है और यहां पर एक पिक्चर हमने लिया है. ये देखिए, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अगेन आई एम ट्राइंग टू बर्न अनदर हाइड्रोकार्बन, बट दिस टाइम इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, इट इज एन
unsaturated hydrocarbon. So whenever an unsaturated hydrocarbons are burned, you will not get that blue colored clean flame. यहां पर आपको मिलेगी येलो फ्लेम, और वो भी सिर्फ येलो फ्लेम नहीं है, यू विल गेट अ येलो फ्लेम विद ब्लैक स्मोक. ये देखिए ब्लैक स्मोक ऊपर की तरफ को जा रहा है. अगर ऊपर आप एक प्लेट रख देते हैं, राइट, नीचे आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया, ऊपर जहां पे वो काला धुआं ऊपर को आ रहा है उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दो, तो क्या होगा, प्लेट के नीचे की तरफ ब्लैक ब्लैक सूट चिपक जाएगी. सूट, SOOT, दैट इज नथिंग बट कार्बन. ये देखिए यहां पर डायग्राम भी दिया हुआ है. आपके पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने बर्न किया. ये देखिए ब्लैक ब्लैक, पूरा ये ब्लैक ब्लैक फ्यूम्स यहां पर निकल रहा है. अगर आप ऊपर एक प्लेट रख देते हैं तो नीचे की तरफ प्लेट में काला काला कार्बन इकट्ठा हो जाएगा. यस, काजल का काम कर सकता है वो, काजल. बट यहां पर काजल इंपॉर्टेंट नहीं है. यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि whenever an unsaturated hydrocarbon is burnt, you are going to get a yellow flame with black smoke. You can call it a sooty flame. You will get a yellow sooty flame. समझ में आया? चलिए इसको लिख देते हैं. सो इसको लिखेंगे, पॉइंट नंबर C, unsaturated carbon compounds will always give a yellow colored flame with lots of black smoke. येलो कलर की फ्लेम मिलेगी और बहुत सारा ब्लैक स्मोक मिलेगा, जिसको मैं सूट बोलता हूं, एंड इट इज नथिंग बट कार्बन. होता क्या है, यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है. अगर आपने अभी ये सोचने की कोशिश की होगी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों ब्लू फ्लेम दे रहे हैं और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हाई आर दे फॉर्मिंग दिस येलो फ्लेम एंड लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन. पूरी तरीके से कार्बन जल नहीं पा रहा है. सैचुरेटेड में कार्बन बहुत अच्छी तरह से जल जाते हैं, वहां हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, राइट. सो लॉट ऑफ बर्निंग टेक प्लेस. सो पूरा कार्बन जल जाता है, राइट. अगर पूरा कार्बन जल जाएगा तो यू विल नॉट गेट दिस ब्लैक स्मोक कमिंग अप. वेयर एज इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, तो बहुत सारा कार्बन कंप्लीटली जलता नहीं है. सो इट एंड्स अप ऑन द प्लेट इन द फॉर्म ऑफ सूट. ठीक है जी. सर क्या ये सिचुएशन हमें अपने घर में भी देखी है कभी? बिल्कुल देखी है. ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट. यहां मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना. देखिए बोलता है, लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर गिव्स सूटी फ्लेम इवन इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन. ओ माय गॉड. तो अगर आप अभी तक ये सोच करके बैठे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम देते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम देते हैं, तो आप सही है, बट आप कंप्लीटली सही नहीं है. यू आर राइट बट यू आर नॉट कंप्लीटली राइट. व्हाई? इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन प्रोड्यूस येलो सूटी फ्लेम, बट कंडीशन क्या है, लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर. अगर प्रॉपरली एयर की सप्लाई हो रही है, मिल रही है, तो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ब्लू कलर की फ्लेम देंगे. ओके, एंड अनसैचुरेटेड तो येलो कलर की फ्लेम देते हैं. बट अगर मेरे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल प्रोड्यूस अ सूटी फ्लेम. वही यहां पर लिखा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन. ये देखिए, ये पहला बंसन बर्नर है. यहां देखिए, यहां पर मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन की सप्लाई नीचे यहां पर
कंट्रोल नॉब होता है, वो मैंने पूरी तरह से खोल दिया है, यानी ऑक्सीजन पूरी तरह से इसके अंदर जा पा रही है। यानी ये जो बर्न हो रहा है, अंदर जो हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिल रही है। सो यू आर गेटिंग अ ब्लू फ्लेम। ओके, जैसे जैसे मैंने वो जो नीचे टाइनी टाइनी होल्स थे ऑक्सीजन के, वो मैंने नॉब घुमा करके बंद करना शुरू किए, और यहां देखिए, यहां मैंने कंप्लीटली क्लोज कर दिया है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है मेरे फ्यूल को। सो ऑक्सीजन साथ में नहीं आ रहा है, सिर्फ यहां तो फ्यूल बर्न हो रहा था और साथ में ऑक्सीजन भी मिल रहा था। सो कंप्लीट कंबशन हो रहा था। ओके, सप्लाई ऑफ एयर वाज सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा था मेरे फ्यूल को जलने के लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलने के लिए, और मुझे ब्लू फ्लेम मिल रही थी, परफेक्टली ब्लू फ्लेम। बट ओवर हियर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, सो नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर, वेरी लिमिटेड, तो फिर आपका इनकंप्लीट कंबशन हो रहा है, इनकंप्लीट कंबशन। और इनकंप्लीट कंबशन से कौन सी कलर की फ्लेम मिल रही है आपको? येलो कलर की फ्लेम मिल रही है। ऊपर क्या मिल रहा है? ब्लैक कलर का सूट मिल रहा है। समझ गए? इज दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर? चलिए, वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई हमारे घर में भी अगर आपके किचन में आप जाइए और जरूर चेक करिए, अगर आपका बर्नर जो है वो ब्लू कलर की फ्लेम है उसमें, मेरे गैस स्टोव में, इफ इट इज गिविंग ब्लू कलर फ्लेम, दैट मीन्स जो होल्स है ना जहां से ऑक्सीजन आ रहा है, ये देखिए छोटे छोटे होल्स हैं, पीछे से सिलेंडर से मेरा फ्यूल तो आ ही रहा है, मेरी गैस तो आ ही रही है, एलपीजी, बट यहां बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं मेरे बर्नर पर, और वहां से क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, O2। सो O2 की सप्लाई अगर प्रॉपर है तो कौन से कलर की फ्लेम्स आ रही है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्लीन ब्लू फ्लेम मुझे मिलेगी। ठीक है, जो होल्स हैं उनमें से प्रॉपरली ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये सिचुएशन है हमारे घर पर। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, मेनी टाइम्स और समटाइम्स यू विल सी कि आपके गैस स्टोव में ये देखिए ऐसे गैस आ रही है, ये पूरी तरह से ब्लू नहीं है, इसमें बहुत सारा येलो कंपोनेंट है, येलो। सो येलो का मतलब ही है इट इज एन इनकंप्लीट कंबशन, और जब भी इनकंप्लीट कंबशन होगा मतलब कि ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी हो सकता है यहां बर्नर के ऊपर जो छोटे छोटे छेद हैं उनमें से बहुत सारे छेद, लॉट ऑफ एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। हो सकता है खाना गिर गया हो सकता है कभी कभी दूध भी बाहर निकल आता है, आप दूध गर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपका ध्यान यहां वहां चला गया, दूध बाहर आ गया, गिर गया, तो आपने साफ तो कर दिया, बट वो दूध उन छोटे छोटे होल्स के अंदर चला जाता है। होल्स आर ब्लॉक्ड। So if the holes are blocked, what is going to happen? Incomplete combustion will take place because oxygen supply will be hindered. ठीक है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिलेगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा और येलो फ्लेम आएगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? यू हैव टू टेक आउट दैट बर्नर। वो निकल जाता है, उसको घुमा करके निकल जाता है। फिर आपको क्या करना चाहिए? उसको धोना चाहिए, और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से जो छोटे छोटे बर्नर के छेद हैं उन सब के अंदर आपको वो शार्प कोई पतली सी पेंसिल ले लो, ठीक है, या आप अपना कॉम्पस ले सकते हो, उससे भी वो पूरे छेद को चेक करिए कि सारे छेद भरे हैं कि नहीं, फूंक मार के देखिए, इफ एयर इज एबल टू पास थ्रू इट, उसको वापस लगाइए, वापस फ्लेम ऑन करिए, एंड यू विल फाइंड दैट नाउ इट विल स्टार्ट ग्लोइंग विद अ ब्लू फ्लेम। ओके सर, और क्या नुकसान हो सकता है?
एक सबसे बड़ा नुकसान इनकम्प्लीट कंबशन का है बर्तन के ऊपर, द यूटेंसिल्स, द वेसल, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे। ये गांव में जो लकड़ियां लगा लगा करके जो चूल्हा बनाया जाता है, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो एन इनकम्प्लीट कंबशन। पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, सो इनकम्प्लीट कंबशन से येलो फ्लेम मिलती है। और जो सूट है ये यहां पे कहां जाके लगेगा, इसमें वो जो सूट है, स्मोक है, वो ये देखो बर्तन में, ये देखो पूरी तरीके से यहां पर पूरा बर्तन, आप गांव में जाएंगे ना तो ऐसे बहुत सारे बर्तन जो हैं वो काले हो चुके होते हैं नीचे से, द बॉटम गेट्स ब्लैकेंड, दैट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। समझ में आ गया? जबकि आप अपने किचन में जाइए, गैस जहां पर है, एलपीजी है, देयर यू विल नॉट फाइंड दैट योर वेसल्स आर बिकमिंग ब्लैक फ्रॉम बॉटम, बट गांव में ये जरूर हो रहा होगा अगर वहां पे आपने चूल्हा जला रहे हैं ऐसे वाले। तो आजकल तो काफी सारे गांव में भी गैस आ गई है, बट अगर कहीं पर कई जगह उन्होंने चूल्हा बनाया होता है, ओके, वहां जो भी बर्तन में खाना बना रहे हैं या आग जला रहे हैं, यू विल फाइंड दैट द वेसल बिकम्स ब्लैक बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। तो वो कार्बन जाके चिपक जाता है, द वेसल बिकम्स ब्लैक। हाथ लगाओगे तो हाथ भी पूरा काला काला हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? क्या क्या हमने देखा, एक बार स्टार्टिंग से देखें। ये तो रिएक्शंस देखे थे, उसके बाद हमने देखा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम, विच saturated hydrocarbons, and the unsaturated hydrocarbons, they will always give you a yellow flame, okay, with lots of black smoke, बहुत सारे black smoke के साथ unsaturated hydrocarbon yellow flame देगा because of incomplete combustion। ठीक है, if you want that your saturated hydrocarbon gives you a yellow flame, then what you can do, you simply limit the supply of air। जैसे ही आप सप्लाई ऑफ एयर को लिमिट कर देंगे, ये देखिए, लिमिट करते ही इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टार्ट गिविंग यू येलो फ्लेम, सूटी फ्लेम। सो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लीन ब्लू फ्लेम मिलता है, घर में आपने देखा है एयर होल्स प्रॉपर है तो, बट अगर प्रॉपर नहीं है तो घर के बर्नर में भी आपको इनकम्प्लीट कंबशन होगा, येलो फ्लेम मिलेगा, बर्तन नीचे से काले हो जाएंगे। एंड यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? लेट अस प्रोसीड फर्दर। ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट टॉपिक। 4.3.2 इज ऑक्सीडेशन। अरे वाह, कंबशन के जैसे ऑक्सीडेशन ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन देयर? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीडेशन। व्हाट वाज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट? देखते हैं और क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। देयर इज वन एग्जाम्पल गिवन टू अस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, बोल रहा है इफ यू हैव अल्कोहल, ओके, एंड यू ऑक्सीडाइज द अल्कोहल, दैट मीन्स यू एड ऑक्सीजन इन दैट अल्कोहल, then that alcohol gets converted to carboxylic acid. So alcohol is oxidized to carboxylic acid. अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? और इसके लिए आपको एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड पड़ेगी। एंड वी हैव गॉट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वन ऑफ देम इज अल्कलाइन KMnO4। ध्यान से सुनना, अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड है,
उसको एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाना है, उसको एक बेस में डिसॉल्व कर दो। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या वो नहीं है तो आप K2Cr2O7 ले लो। व्हाट इज K2Cr2O7? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान से सुनना, K2 इज पोटेशियम, Cr2 इज डाइक्रोमियम, सो पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला इज K2Cr2O7। और कैसा होना चाहिए? ये एसिडिफाइड होना चाहिए। ओके, ये थोड़ा ऑरेंजिश जैसा होता है, सॉलिड है, उस थोड़े एसिड में उसको डिसॉल्व कर दो, एक सोल्यूशन जो बन जाएगा, दैट इज एसिडिफाइड K2Cr2O7। सो इफ यू ऐड अल्कलाइन KMnO4 और acidified K2Cr2O7 into a test tube containing alcohol, you will find that the K2Cr2O7 or KMnO4 is going to supply oxygen to alcohol. वो alcohol को oxidize कर देगा। They are the oxidizing agent. They're going to oxidize alcohol and give you carboxylic acid. Is this point clear? समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी चीज है, बट बिकॉज हम ऑलरेडी अल्कोहल टॉपिक पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं, तो हम इसको एक रिएक्शन की तरह लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, जहां हम फॉर्मूला लिखेंगे एक अल्कोहल का और देखेंगे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा। चलिए देखते हैं। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। अल्कोहल आई हैव टेकन इज इथेनॉल के 2 कार्बन है, इथेन और एक OH ग्रुप है, सो इथेनॉल वी हैव टेकन। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, इथेनॉल। और उसको ट्रीटमेंट कराया है मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट किया, या तो फिर आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ इसको हीट कर दीजिए। ठीक है, यू कैन टेक अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आप इथेनॉल ले लीजिए, लिक्विड होता है, उसमें आप ये अल्कलाइन KMnO4 पिंक कलर का सॉल्यूशन बनेगा, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये भी एक ऑरेंज कलर का केमिकल बनेगा, उसको इसमें आप ऐड कर दीजिए। आप समझ सकते हैं, इथेनॉल पानी जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, और ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 आपका क्या बोले, फैंटा जैसा होगा, और डार्क कलर फैंटा उस जैसा, वो उसमें आप मिला देंगे, थोड़ा सा मिला दीजिए, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हीट कर दीजिए, अल्कोहल विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बट सर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? देखिए यहां पे 2 कार्बन का अल्कोहल था इथेनॉल, तो आपको प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन का एसिड ही मिलेगा। अगर किसी ने यहां 3 कार्बन का अल्कोहल आपको दिया होता, यानी प्रोपेनॉल दिया होता, तो आपको मिलता प्रोपेनोइक एसिड। You have taken 2 carbons, ethanol has got 2 carbons, तो आपको 2 कार्बन का एसिड मिलेगा। और देखिए क्लियरली यहां पे पता लग रहा है, I have got only 1 oxygen और यहां पर I have got 2 oxygen. So oxidation has taken place, right? What is oxidation? Oxidation is addition of oxygen या फिर removal of hydrogen भी तो होता है। तो यहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां हाइड्रोजन कम है, राइट? सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू इथेनोइक एसिड। और एक चीज आपने यहां पर ध्यान देना है, द कलर ऑफ KMnO4 विल गेट डिस्चार्ज। जब आप KMnO4 या K2Cr2O7 उसमें डालेंगे ना थोड़ा सा, तो क्या होगा, उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका जो भी पिंक या डार्क रेड जैसा जो कलर है, ऑरेंजिश जो कलर है, वो चला जाएगा। तो जब कलर चला जाएगा, इसका क्या मतलब है? मतलब रिएक्शन हो रहा है, मतलब इथेनॉल K2Cr2O7 या KMnO4 को यूज कर ले रहा है और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब और 2-3 ड्रॉप डालिए, अगर वो ड्रॉप फिर से डीकलराइज हो जाते हैं, मतलब अभी भी मेरे पास इथेनॉल है जो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप और KMnO4 या K2Cr2O7 उसमें डालेंगे और वो डीकलराइज नहीं होगा। तो अगर वो डीकलराइज नहीं हो रहा है, मतलब ऑल द अल्कोहल हैज बीन यूज्ड अप एंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। अब आप और मत डालिए, क्योंकि इथेनॉल ही खत्म हो गया है, ऑल द इथेनॉल हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू
इथेनोइक एसिड। क्या आपको ये समझ में आया? बोलिए यस और नो। समझ में आया? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो एजेंट करते हैं उनका नाम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आगे लिख लेंगे। एक रिएक्शन यहां पर हमने देखा कि अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो रिएक्शन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, कैसे कलर चेंज होता है वो भी आपको बता दिया। तो चलिए यहां से एक क्वेश्चन और टीचर बना सकती है, वो है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड गिव टू एग्जांपल। ये दोनों चीजें आपको पता है। आंसर आप लिखेंगे कि सम सब्सटेंसेस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन इनटू द अदर। जैसे यहां पर क्या था? एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4, they have got oxygen, so they have a tendency, they have a capability of adding oxygen into alcohol and getting it converted into ethanoic acid या carboxylic acid. So some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agent. इनको हम oxidizing agent बोलते हैं। Definition as it is लिख देनी है, ठीक है? और दो एग्जाम्पल यहां पे लिख देने हैं। ये आगे अल्कलाइन और एसिडिफाइड वर्ड लिखना कंपलसरी है, ठीक है जी? ये भी क्लियर है। चलते हैं थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस। अब ये मत बोलना सर एडिशन है तो कल को सब्ट्रैक्शन रिएक्शन भी है क्या? नहीं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं, सिर्फ एडिशन रिएक्शंस हैं। और कौन पसंद करता है एडिशन रिएक्शंस को? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शन को पसंद करते हैं। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑलवेज ट्राई टू अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो ये भाई एडिशन रिएक्शन है क्या जिसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इतना पसंद करते हैं? अभी आपको बताता हूं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म a single product having all atoms of the combining molecules are called addition reaction। एक तरह से बोले ना तो चैप्टर 1 का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में C+O2CO2, करेक्ट? जो भी रिएक्टेंट थे सबके सब मिलके प्रोडक्ट में नजर आते हैं। एडिशन रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही है, बोलता है जिसमें दो मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट होंगे वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो यहां तक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा ही है। और जो भी रिएक्टेंट्स में नजर आ रहे हैं वो सब कंबाइन होके ऑल एटम्स आर कंबाइंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सो एग्जैक्टली वैसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा ही डेफिनेशन है। डेफिनेशन आई होप यू आर क्लियर। और ज्यादा डेफिनेशन क्लियर होगा इसके एग्जाम्पल से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। एक पहला एग्जाम्पल हम आपके लिए लेके आए हैं और वो है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद इथीन। तो दो चीजें जो आपस में रिएक्ट करने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है इथीन और एक है हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये आपके लिए एक नया वर्ड है, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं कि एक कैटलिस्ट होता क्या है। एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, यानी एरो के ऊपर मैं लिखूंगा कैटलिस्ट, ठीक है? ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन कौन से कैटलिस्ट हो सकते हैं? जैसे निकिल, Na आपका कैटलिस्ट हो सकता है, या पैलेडियम, पैलेडियम को शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिखते हैं। सो निकिल, पैलेडियम ये कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं इस रिएक्शन में, और आपको मिल रहा है ईथेन। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन पसंद करते हैं, तो यहां पर जो ईथीन है वो आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, U फॉर अनसैचुरेटेड, HC फॉर हाइड्रोकार्बन। और आपको मिला क्या? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बदल जाएगा।
बट ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होना चाहिए। कौन कौन से दो अच्छे कैटलिस्ट हैं? निकिल और पैलेडियम। ठीक है, इस रिएक्शन को भी लिख करके देख लेते हैं एक बार। इथीन के लिए फॉर्मूला लिख करके देख लेते हैं, हमें आता है। तो ये देखिए, ये रहा रिएक्शन, इसको समझते हैं। इथीन, आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आता होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, लास्ट में ईन है। ईन कब आता है? जब डबल बॉन्ड होता है और दो कार्बन है तो ईथ और लास्ट में लग गया ईन, राइट। इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस H2, हाइड्रोजन इसमें ऐड करने इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं? निकिल और पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह यूज करें। तो देखो रिएक्शन होता कैसे, बहुत सिंपल सा है कि एक काम करते हैं, ये देखिए जो दो हाइड्रोजन है ना, इनको मैं ऐसे लिख दूं HH, दो हाइड्रोजन, इनमें से एक हाइड्रोजन तो इसके पास चला जाएगा और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो दूसरे के पास चला जाएगा। जब पहले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन और आ गया तो पहले वाले के पास तीन हाइड्रोजन हो गए, यानी कि CH, राइट। दूसरे कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन थे, अब एक और आ गया तो इसके पास भी बचा H। और टेक्निकली अब ये दोनों कार्बन भी जब अटैच होंगे तो देखिए यहां तो डबल बॉन्ड था, बट अब क्योंकि एक एक हाइड्रोजन दोनों के पास ऐड हो गया है तो ऑलरेडी उनकी वैलेंसीज कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एक एक ही वैलेंसी बची थी, इसलिए सिंगल बॉन्ड ही आएगा बीच में। समझ रहे हैं? इसलिए सिंगल बॉन्ड ही आएगा। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड। इथीन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेन। प्रोपीन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपेन। इज दिस क्लियर? वेरी मच क्लियर। क्या ये समझ में आया? तो इथीन हाइड्रोजन इथीन में ऐड होता है, एक बार फिर से बताता हूं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाता है, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाता है, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन और आपको इथेन मिल जाता है, राइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ओहो, इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन। क्यों बोलते हैं इसको हाइड्रोजिनेशन? बिकॉज हाइड्रोजन गेट्स एडेड, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्लोरीन गेट्स एडेड होता तो क्लोरीनेशन होता, ब्रोमीन गेट्स एडेड तो क्या बोलते? ब्रोमिनेशन। यहां पे हाइड्रोजन गेट्स एडेड तो क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजिनेशन। समझ में आया? सो इथीन ऑन हाइड्रोजिनेशन in presence of nickel palladium catalyst gives you ethane। अल्कीन से अल्केन मिलता है। अल्कीन एडिशन रिएक्शन पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था कि कैटलिस्ट क्या है वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। एक छोटी सी स्टोरी है और फिर मैं आपको कैटलिस्ट की डेफिनेशन दूंगा। वो स्टोरी से आपको कैटलिस्ट एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि वो होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी कुछ ऐसी है, ये आप हैं, ठीक है, और ये देखिए कल अचानक से आपके पास व्हाट्सएप पर ग्रुप पर मैसेज आता है कि कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है जिसमें से फॉर एग्जाम्पल 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। ओके, 7 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो आप रात को 9 बजे पढ़ने बैठ गए। ठीक है, ठीक है, म्यूजिक सुन रहे हैं साथ ही साथ में मस्त एकदम, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, साइड में आज मोबाइल नहीं बनाया यार, एक मोबाइल मोबाइल तो बनाना ही चाहिए, राइट। वो तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आजकल, राइट। तो मोबाइल गाने वाने सुन रहे हैं आप, ठीक है, और पर देखिए 11 बजे क्या हालत हो चुकी है आपकी, कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई आपकी, और 11 बजे तक आप ऑलमोस्ट अपनी टेबल पर ही सो चुके हैं। ठीक है, अराउंड 10 बजे के करीब, ठीक
ठीक है, 10 PM के करीब आपके पेरेंट्स आए, ठीक है, आपका सेपरेट रूम है, आप पेरेंट्स आए आपके पास एंड दे आर टेलिंग यू कि बेटा हम बैठे कि आप पढ़ोगे, तो आपने उनको बोला नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा मैम, मम्मी पढ़ लूंगा, हाँ, या पापा मैं पढ़ लूंगा, आप फिक्र मत करो, ठीक है। पर देखिए फिक्र नहीं करोगा क्या मतलब है, 11 बजते बजते आपकी आपको नींद आ जाती है। अब क्या हुआ, 11:30 बजे के करीब आपके पापा वॉशरूम के लिए उठते हैं, ठीक है, या मम्मी वॉशरूम के लिए उठ रही है, ठीक है, वो दोनों में से जो पढ़ाई को लेके ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, ज्यादा आपके ऊपर नजर लगता है, इस केस में इसके पापा हैं। सो डैडी हैज बिकम रियली एंग्री, ये पढ़ाई हो रही है तुम्हारी है, इसीलिए मैंने तुमको बोला था कि मैं भी यहीं बैठता हूं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो चलो। थोड़ा ऐसा पापा गुस्सा करते हैं और फिर ये देखिए पापा वहीं पर बैठ जाते हैं, मे भी हो सकता है हाथ में एक न्यूज़पेपर ले लेते हैं कुछ, ठीक है, या कुछ अपना काम ले लेते हैं, बोलते बेटा मैं अपना काम करता हूं और तुम करो, तो आपकी तो नींद उड़ जाएगी ना सारी की सारी। जितनी नींद अभी तक आपको यहां पर आ रही थी, मुझे बताओ क्या वो नींद रहेगी अभी? बिल्कुल नहीं। और देखिए यहां सिचुएशन थी आपकी, कोई बुक्स नहीं कंप्लीट हुई थी, और यहां देखो फिर 11:30 के बाद 12:30, 1:30, 2 बजने को आ गए हैं, और ये देखिए कितनी सारी बुक्स आपने खत्म कर दी है पढ़ पढ़ के अगले दिन तो आपने टॉप ही करना है मुझे लगता है, राइट। तो ये हम क्यों कहानी सुना रहे थे? ये कहानी सुना रहे थे कैटलिस्ट समझने के लिए। तो यहां पर योर पापा हैज एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, मतलब उन्होंने आपको पढ़ाई करवाई नहीं है, ठीक है, बट उनका प्रेजेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट था, उनका वहां पर होना ही बहुत, मतलब होना ही काफी था, राइट। सो हिज प्रेजेंस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पढ़ाई 10 टाइम्स फास्ट हो गई, 10x, 1x 2x नहीं, डायरेक्टली 10x ये हालत थी, और अब हो गई ये हालत। तो आप तो भाई टॉप करने वाले हैं, राइट। सो पापा है इज अ कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट के होने से रिएक्शन, वो काम और फास्ट हो जाता है, मस्त हो जाता है नींद गायब हो जाती है। मुझे जरूर ऑफलाइन में बताना कि आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कैटलिस्ट। तो चलो कैटलिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैटलिस्ट की डेफिनेशन है अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, आपके लिए हो जाएगा अ कैटलिस्ट इज अ पर्सन विच स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन, विच स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग, and at the end of the reaction the catalyst is chemically unchanged। मतलब at the end of this full process, ठीक है, the catalyst is chemically unchanged, मतलब कैटलिस्ट में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, उसका प्रेजेंस, उसके होने से ही रिएक्शन फास्ट हो जाता है। So if you want to speed up a reaction we will use catalyst। और यहां पर हम कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं? निकिल और पैलेडियम, Ni फॉर निकिल, Pd फॉर पैलेडियम, ठीक है। आगे चले, ये तो हमने एक रिएक्शन देखा, हाइड्रोजनेशन हमने देखा, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन कन्वर्ट्स इट इनटू इथेन। एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने आ गया है, और वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये क्या है सर? ये देखिए यहां मैंने, सर ये आर क्या है? बच्चे हर बार पूछते हैं। देखो आर क्या होता है ना, अगर मेरे पास एक कार्बन की बहुत लंबी चेन है, ठीक है, जिसमें कहीं पे डबल बॉन्ड है, कहीं और डबल बॉन्ड है, और लंबी चेन है, कहीं एच है, कहीं कुछ ऐसा लंबी सी चेन है, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आर लिख देता हूं, ठीक है। कहने का मतलब है ये एक बहुत बड़े कंपाउंड का एक छोटा सा पार्ट यहां पे शो किया है, ये वेजिटेबल ऑयल है। एंड बोलता है वेजिटेबल ऑयल हैज लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, एक बहुत लंबी कार्बन चेन होती है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं उसमें
होता है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट हमने यहां पे शो किया है। इज दिस क्लियर? ये वेजिटेबल ऑयल को शो कर रहे हैं हम यहां पे, छोटे से इस तरीके से वेजिटेबल ऑयल को शो करते हैं। उसमें एक डबल बॉन्ड दिखा दिया और बाकी RR ग्रुप लगा दिए, ठीक है। इसका भी हाइड्रोजनेशन होगा, जैसे वहां पे इथीन का हाइड्रोजनेशन हुआ है, यहां भी हाइड्रोजनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन गेट्स एडेड, तो एक हाइड्रोजन में इस कार्बन के पास दे देता हूं और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास दे देता हूं, राइट। तो जो पहले कार्बन के पास 2 R थे, एक H भी आ गया, आप देखो 2 R थे, अब एक H भी आ गया, राइट। और वैसे ही जो दूसरा कार्बन है इसके पास भी 2 R थे, अब एक H इसके पास भी आ गया। तो ऑलरेडी इस कार्बन के 3 हैंड्स ऑक्यूपाई हो चुके थे, तो अब ये दूसरे कार्बन को ये दोनों एक सिंगल बॉन्ड से ही पकड़ेंगे, यानी डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, राइट। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अगर आपको एग्जाम में पूछे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का रिएक्शन क्या है, तो ये रिएक्शन आप लिखेंगे, अनसैचुरेटेड बिकम्स सैचुरेटेड। ओके, कुछ एक थोड़े सा आपके लिए एक एडवाइस भी इन्होंने यहां पर दिए हैं, जब ये बात कर रहे हैं वेजिटेबल ऑयल और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, तो यहां देखिए आपके लिए एक एडवाइस दी गई है कि भाई एनिमल फैट से आप लोग थोड़ा सा दूर रहिए, एनिमल फैट्स, बिकॉज एनिमल फैट्स कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड और वो डाउन है, मतलब इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो आप एनिमल फैट कुकिंग के लिए यूज मत करिए, जितना हो सकता है कुकिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल यूज करिए, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं एंड दोज आर गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो एनिमल फैट्स कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर नॉट गुड फॉर अस। ओके, इसको लिख भी लेते हैं, animal fats generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful. Not good means they are said to be harmful to the health. So we will not try not eating lot of saturated fatty acid. On the other hand, use vegetable oils. They contain unsaturated fatty acids and they should be chosen always for cooking. खाना बनाने के लिए maximum आपको use करना है unsaturated fatty acid. समझ में आ गया? चलें आगे। 3 हम टॉपिक कर चुके हैं, कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं हमारे 4th टॉपिक पर, जो है 4.3.4 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो नहीं है, बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे, यू नो दिस वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्कूल में बहुत बार सब्स्टिट्यूशन होता है, एक टीचर चली जाती है तो उसकी जगह एक दूसरी टीचर आ जाती है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बच्चों के लिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब गेम्स पीरियड, राइट। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, एक चीज को निकाल के दूसरी चीज उसकी जगह आ जाएगी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल is replaced or substituted by different atoms or group of atoms are called substitution reaction. क्या बोलता है? जिसमें एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम के अंदर कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड। कभी कभी एक एटम ही हटा दिया जाता है या कभी कभी एक पूरा ग्रुप ऑफ एटम हटा दिया जाएगा और उसकी जगह एक दूसरी चीज आके ले लेगी, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डेफिनेशन आप जरूर लिख लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये देखिए, बोल रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, HC मतलब हाइड्रोकार्बन,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। जैसे आपने देखा था ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी रिएक्टिव। अब पहले जब आपने डिफरेंशिएट लिखा था दोनों के बीच में, तब भी आपने ये पॉइंट लिखा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी स्टेबल बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी रिएक्टिव, स्पेशली दे हैव वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। वो आप देख चुके हो, पीछे हाइड्रोजनेशन देखा था आपने, वही था। लेकिन बोलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। तो जनरली अगर मैं कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना चाहता हूं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी करने की कोशिश करूंगा, तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज इट इज फेयरली अनरिएक्टिव। तो हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी यहां पर, और एनर्जी सप्लाई करने के बाद ही ये अनरिएक्टिव वाला रिएक्शन बहुत रिएक्टिव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। बोलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन, ये वाला जो रूम टेम्परेचर पर कोशिश कर रहे थे और नहीं हो रहा था, इफ दिस इज डन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन क्लोरीन इज एडेड टू माय मीथेन, हाइड्रोकार्बन वहां पे मीथेन है, इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन क्लोरीन कैन टेक प्लेस, या इट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। एक एक करके क्लोरीन सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर सकती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं। ये देखिए, ये रिएक्शन ऐसे स्टार्ट होता है। ये टोटल 4 स्टेप्स में जाता है। हमारी टेक्स्ट बुक में आपको शायद इसका स्टेप नंबर 1, यानी ये जो दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही आपको मिलेगा। ठीक है, हम इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। देखिए, ये है मीथेन CH4 प्लस Cl2। देखिए Cl2 मतलब 2 क्लोरीन है। ध्यान से देखना होता क्या है, ये क्लोरीन क्लोरीन ब्रेक होगा, सनलाइट एनर्जी सप्लाई करेगी, क्लोरीन ब्रेक होगा, Cl एटम होगा। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl। और जो ये जगह खाली हुई होगी यहां पर, वो जो जगह खाली होगी उसमें कौन आकर के बैठ जाएगा, ये दूसरा वाला Cl आके बैठ जाएगा। ये देखो, समझ में आ रहा है? आपके पास 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, और जो वैलेंसी क्रिएट होगी वो दूसरा क्लोरीन आके वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन नहीं है, कुछ ऐड नहीं हो रहा है, कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया। जो पहले CH4 था, अब वो बन गया CH3Cl। यस और नो? CH3Cl। इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्या नाम है? क्लोरोमीथेन। ठीक है, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने की जगह CH4 प्लस Cl2, कहीं कहीं सनलाइट को HNu ऐसे भी लिखा जाता है। आपको मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। आप समझ रहे हैं? ये सेम रिएक्शन है, बट यहां पे थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर जैसे बनाए हैं, यहां क्लोज। एक बार समझ में आ जाए तो आप क्लोज स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब आपका ये जो प्रोडक्ट मिला आपको, क्लोरोमीथेन, जैसे यहां पर हमने लिखा था क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, तो अभी तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है। अब इसको लेंगे प्रोडक्ट को, यानी क्लोरोमीथेन को लेंगे, और इस क्लोरोमीथेन को फिर से एक और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से सनलाइट की मदद से क्लोरीन क्लोरीन ब्रेक होगा, और ये क्लोरीन अब एक और हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, और दूसरा क्लोरीन यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा। यानी आपको मिल जाएगा CHHCl। अब यहां पर भी एक और Cl आ जाएगा, और साथ में प्रोडक्ट क्या मिला आपको, HCl मिला। क्या है ये है CH2Cl2, नाम है डाइक्लोरोमीथेन। समझ रहे हैं? 2 क्लोरीन है, था तो ये पूरा मीथेन ही, अब उसमें 2 क्लोरीन आ गए तो डाइक्लोरोमीथेन। क्या सर ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या बोला था यहां पर
एक एक करके सारे एटम्स को रिप्लेस कर देगा, सारे हाइड्रोजन एटम्स को। तो एक को तो रिप्लेस कर चुका, अब दो को रिप्लेस कर चुका, अब बच गए सिर्फ ये दो, अब इनको भी रिप्लेस करते हैं। चलिए, सो डाइक्लोरोमीथेन फिर लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, फिर से Cl बॉन्ड Cl। अब इस बार एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को भी निकाल देते हैं और इसकी जगह भी एक Cl फिट कर देते हैं। तो Cl 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 और एक H और प्रोडक्ट क्या मिला, HCl। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CHCl3, नाम क्या है, ट्राई क्लोरोमीथेन। समझ में आ रहा है, ट्राइक्लोरो, इस बार 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब चलते हैं इस ट्राइक्लोरोमीथेन को ले लेते हैं और अब ये लास्ट हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देते हैं, ये आके इसको भी रिप्लेस करेगा और आपको मिल जाएगा CCl Cl 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 प्लस HCl। यस यस यस, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि यार ये तो हमने किया था, ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बनाया था, करेक्ट। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन तो है और टेट्रा मतलब 4, क्लोरीन है। या फिर हम इसको IUPAC में बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है, ये IUPAC वाला नेम है, टेट्राक्लोरोमीथेन। उसके पहले क्या था, ट्राइक्लोरोमीथेन, उसके पहले क्या था, डाइक्लोरोमीथेन, उसके पहले क्या था, मोनोक्लोरोमीथेन, या क्लोरोमीथेन बोलेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम। पहले एक रिप्लेस किया, मोनोक्लोरो मिला या क्लोरोमीथेन मिला, फिर मिला डाइक्लोरोमीथेन, फिर मिला ट्राइक्लोरोमीथेन और लास्ट में मिला टेट्राक्लोरोमीथेन। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन 4 स्टेप। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता नहीं है जनरली, अनरिएक्टिव, करेक्ट। मीथेन यानी अल्केन्स आर अनरिएक्टिव, बट सनलाइट के प्रेजेंस में द रिएक्शन बिकम्स वेरी फास्ट एंड यू गेट लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स as a result of the reaction. I hope you are clear with all these 4 chemical properties of carbon compounds, right? मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।